بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو المنیر ہائی اسکول ای لرننگ سسٹم کے جی کلاس. آج ہماری اردو کی کلاس ہے. الہرا الفاظ سازی ورک بک سے ہم حروف تہجی کی آدھی اشکال کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی شرارتی نو کے بارے میں. اور آپ کا ورک بک پہ پیج نمبر ہے 2 to 6. جی حروف تہجی. الف سے یہ تک پڑھیں. الف، الف مدہ، بے، پے جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، تے، توئیں، ٹے تین نقطے ہوں تو سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، دال، زال، رے، ارے، زے، سے، سین، شین، صاد، زواد، توئیں، زوئیں، آئین، غائن، فے، قاف، کاف، واف، لام، میم، نون، واؤ، ہے، چھوٹی اے، بڑی اے. حروف تہجی کی آدھی اشکال. اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ سب حروف ہیں حروف تہجی، اور ہم نے اب ان کی آدھی اشکال رائٹ کرنی ہے. تو آپ یہ دیکھیے، جس طرح ہم بے کو لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہاں سے اس طرح سے ہم لکھیں گے لائن کے ساتھ اور نیچے ایک نقطہ لگائیں گے تو بے، یعنی ایک شوشے کے ساتھ بے، جس کے نیچے تین نقطے ہوتے ہیں، پے، تے، ٹے اور سے. آپ دیکھیے بے کے خاندان میں ان تمام حروف کی آدھی اشکال ایک جیسی لکھی جائیں گی، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان تمام حروف کی پہچان جو ہے وہ ان کے نقطوں سے واضح کی جاتی ہے. جیسے کہ ہمیں اس چیز کا معلوم ہے کہ جب ہمارے پاس بے کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بے، اور تین نقطے ہوں نیچے تو ہم بولتے ہیں پے. تو یہ کس کی آدھی شکل ہے؟ پے کی. اور جس کے اوپر دو نقطے ہوں گے وہ کس کی آدھی شکل ہوگی؟ تے کی. اور جس کے اوپر ایک چھوٹی سی توئیں بنی ہوتی ہے وہ ہے ٹے کی آدھی شکل. اور اگر اوپر تین نقطے ہیں تو پھر سے کی آدھی شکل. تو اس طرح سے یہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ بے، پے، تے، ٹے اور سے کی آدھی اشکال جیسے کہ پوری اشکال لکھنے میں ایک جیسی ہے، اسی طرح جب ہم آدھی اشکال لکھتے ہیں تو وہ بھی لکھنے میں ایک جیسی ہے، اور صرف ان کے نقطوں سے ان میں فرق کو واضح کیا جاتا ہے. اسی طرح سے جب ہم جیم کا خاندان کی آدھی اشکال لکھیں گے تو جیم، چے، ہے، خے، جس طرح پوری شکل جیم، چے، ہے، خے کی لکھنے میں ایک جیسی ہے، اسی طرح جب آدھی اشکال لکھتے ہیں تو بھی جیم کے خاندان کو لکھنے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی ان حروف میں پہچان ان کے نقطوں سے واضح ہوتی ہے. جیسے جیم کے ایک نقطہ، جس کے نیچے ایک نقطہ ہے وہ جیم، تین نقطے ہوں گے تو چے، جس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے، اور جس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے وہ خے. تو جیم کے خاندان میں تمام جیم کے خاندان کے حروف ایک طرح سے ہی لکھے جاتے ہیں اور ان کے نقطوں سے ان کی پہچان کی جاتی ہے. اسی طرح سین اور شین. سین، شین. سین اور شین کی بھی آدھی اشکال لکھنے میں بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن ان میں بھی جو فرق کو پہچان کیسے کی جاتی ہے فرق کی، ان کے نقطوں سے ان کے فرق کو واضح کیا جاتا ہے. جس کے اوپر تین نقطے ہوں تو سین کو، پھر اگر تین نقطے ہوں تو ہم کیا پڑھیں گے؟ شین. یعنی اگر سین کے اوپر ہم تین نقطے لگا دیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ شین. تو آدھی اشکال لکھنے میں سین اور شین ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے نقطوں سے ان کی پہچان کو واضح کیا جاتا ہے. تو شین کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں؟
3 नुक्ते होते हैं। इसके बाद है स्वाद ज़्वाद। स्वाद और ज़्वाद भी जब हम इनकी आदि इश्काल लिखते हैं तो ये भी लिखने में एक ही तरह के हैं, लेकिन इनके नुक्ते से स्वाद और ज़्वाद की पहचान की जाती है। स्वाद के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, और अगर स्वाद के ऊपर एक नुक्ता लगा दिया जाए तो वो क्या हर्फ बन जाता है? ज़्वाद। इसी तरह से आइन और गाइन। आइन और गाइन भी लिखने में एक जैसे हैं। यहाँ पर भी हम सिर्फ एक नुक्ते के फ़र्क से इनकी पहचान को समझ पाते हैं। आइन और गाइन, जब हम आइन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता और जब हम आइन के ऊपर एक नुक्ता लगा दें तो वो क्या हर्फ बन जाता है? गाइन। फे और काफ। फे और काफ की छोटी इश्काल लिखने में एक जैसी हैं। यहाँ पर भी इनके नुक्तों से हम इनके फ़र्क को वाज़ह करते हैं। जैसे कि फ़े और काफ की छोटी शक्ल जब हम लिखते हैं तो उसकी शक्ल वाव की तरह बन जाती है। तो यहाँ पर फ़े और काफ, फ़े के ऊपर एक नुक्ता और काफ के ऊपर 2 नुक्ते। इसी तरह जब हम काफ, गाफ और लाम लिखते हैं तो इनकी लिखाई के आदि इश्काल लिखने का तरीका एक सा होता है, लेकिन इनके ऊपर जो डंडे होते हैं वहाँ से इनकी पहचान को समझा जाता है। एक डंडे के साथ काफ, और अगर 2 डंडे हैं तो गाफ, और जिसके ऊपर कोई डंडा नहीं वो क्या है? लाम। काफ, गाफ और लाम। काफ और गाफ बोलने में भी हम आवाज़ लगते हैं काफ और गाफ। इनके सिर्फ इन दोनों में एक डंडे का फ़र्क है, तो ये काफ और गाफ। लाम चूँकि पूरी शक्ल में लिखने में बिल्कुल मुख्तलिफ होता है काफ गाफ से, लेकिन जब हम इसकी छोटी शक्ल लिखते हैं तो इसकी आदि इश्काल जो है वो काफ और गाफ की तरह होती है, लेकिन इसके ऊपर कोई डंडा नहीं होता। मीम की जब हम छोटी शक्ल लिखेंगे तो आदि इश्काल में मीम हम नीचे से गोल करेंगे, जबकि पूरी शक्ल में हम मीम को ऊपर से गोल करते हैं। लेकिन जब आदि इश्काल में हम मीम लिखेंगे तो मीम को हम नीचे की तरफ गोल करेंगे। नून। नून भी आप देखिए, नून भी बे की छोटी शक्ल की तरह है, लेकिन जब उसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो वो नून की आदि इश्काल को वाज़ह करेगा। हे के नीचे आप उल्टी पेश लगाएं और ये के नीचे 2 नुक्ते लगाने से ये इसकी छोटी आदि शक्ल को वाज़ह करता है। अभी हमने जो हरूफ पढ़े आपने उनमें थोड़ा सा गौर किया हो तो इन हरूफ में अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, अरे, जे, से और वाव हरूफ शामिल नहीं हैं। ये हरूफ इसलिए शामिल नहीं हैं क्योंकि इन हरूफ की आदि इश्काल नहीं होती। इसलिए आदि इश्काल के जब हम हरूफ लिखेंगे, हरूफ की आदि इश्काल लिखेंगे तो फिर इन हरूफ की चूँकि आदि इश्काल नहीं होती, इसलिए इसमें वो हरूफ नहीं लिखे जाते। और जो हरूफ जिनकी आदि इश्काल नहीं होती उन हरूफ को हम शरारती 9 भी कहते हैं। अगर आप इन्हें देखें तो ये हमारे पास 9 हरूफ हैं जिनकी आदि इश्काल नहीं होती, और इनको हम क्या कहते हैं? शरारती 9। शरारती 9 इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हरूफ किसी भी लफ्ज़ के साथ मिलकर कोई हर्फ नहीं बनाते, यानी ये हरूफ किसी लफ्ज़ के शुरू में इसके साथ नहीं मिलते, शुरू में अकेले ही रहना पसंद करते हैं। जैसे कि आप यहाँ इस मिसाल में देख सकते हैं, अनार। इस लफ्ज़ में देखिए, अनार में अलिफ सबसे पहले है, तो यहाँ पर अलिफ अपने बाद आने वाले हर्फ को अपने साथ मिलाकर नहीं लिखता, लेकिन अगर अलिफ किसी हर्फ के बाद में आ जाए तो वो हर्फ अलिफ के साथ मिल जाता है। तो इसी तरह अलिफ, नून अलिफ ना, रे, अनार। यहाँ पर देखिए रस्सी। रस्सी में आप देखें रे जो है शरारती 9 है, तो शरारती 9 में रे जो है वो सीन को अपने साथ नहीं मिलने देता, इसीलिए इसको हम शरारती 9 कहते हैं। लेकिन सीन को हम फिर रस्सी लिखते हुए सीन को हम छोटी ये के साथ मिलाएंगे और रे को अलग से रहने देंगे, तो रे, सीन, छोटी ये, सी, रस्सी। इन तमाम हरकत से आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि ये हरकत जो है इन्हीं हरकत की वजह से इनको शरारती 9 कहा जाता है, क्योंकि ये हरूफ अगर शुरू में आ जाएं तो अपने बाद आने वाले हरूफ को अपने साथ मिलकर नहीं लिखा जाता।
अब यहाँ पर पहाड़ देखिए, पहाड़, पे हे अलिफ अरे, पहाड़। अब पहाड़ में आप देखें कि अलिफ जो है वो हे के बाद आ रहा है, बाद में आ रहा है, इसीलिए हे के साथ मिलकर अलिफ को लिखा गया है। लेकिन जब अलिफ के बाद अरे आई है तो अलिफ भी शरारती नो है और अरे भी शरारती नो में आते हैं, तो ये दोनों हरूफ एक दूसरे को अपने साथ मिलने नहीं दे रहे। तो यहाँ पर हम अरे को अलग से लिखेंगे, तो ये क्या है, पहाड़। तो शरारती नो के जो 9 हरूफ हैं, अलिफ, दाल, डाल, जाल यानी दाल का खानदान, रे, अरे, जे और से यानी रे का खानदान, और वाव, इनकी छोटी इश्काल नहीं होती और इनको शरारती नो कहा जाता है। और ये शरारती नो जो है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि शरारती नो जो हरूफ हैं, ये हरूफ किसी भी लफ्ज़ के साथ मिलकर कोई हर्फ नहीं बनाते। अब आप सब बच्चों ने हरूफ तहजी की आदि इश्काल की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और शरारती नो को भी आप देखेंगे कि आपके जिन अल्फाज में ये शरारती नो इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पर ये शरारती नो हरूफ खुद को दूसरे हर्फ के साथ अगर ये शुरू में आ जाएं तो मिलने नहीं देते। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।